Designated areas outside for networking after the session, because we always have that after this is lunch and then we'll have another session. And one last thing, there's a QR code at the back of the agenda to share your feedback. Without further ado, today's topic that we're going to talk about is Enterprise, the Entire Prize. And this next panel is co-hosted by Tata Steel Foundation. Please welcome Smita Verma, Lead for Gender and Community Enterprise at Tata Steel Foundation. Smita Verma has been a part of the Tata Steel ecosystem for more than 14 years now. As the lead of the Gender and Community Enterprise vertical of the foundation, her scope of work falls in line with the vision to create a society where women are empowered, equal, and active participants in all spheres of life. Joining Smita on the panel is Dipantri Sardar. Dipantri, please do come on stage. Former Mukhya at Tetla Panchayat and a social change maker. Dipantri Sardar, a social activist, has made remarkable contributions to the socio-economic development of her panchayat, transforming the lives of countless individuals through her tireless efforts. One of Dipantri's most significant achievements is her work in promoting institutional deliveries and raising awareness about sanitation and hygiene. Welcome. Next, we have Malti Singh, a social change maker. Malti was born into a Bhumij tribe, and her early years were marked by hardship, marrying at 15 to escape a troubled family. Her childhood, scarred by her father's alcoholism, led Malti and her 5 siblings into a challenging realm of survival. Thank you, Malti, today for joining us. Dhanyavad. Vipanita Rabba, Fellow 2022 for the Tribal Leadership Program, is associated with Samvad since 2019. Besides being a teacher, she's a tribal home cook and a fellow of the leadership program. Being part of the student union, she has worked towards the development of her culture, language, tradition, and identity. Welcome. I will now hand over to Smita to kick off the discussion, which will be in Hindi. So thank you, Shari. Thank you so much, and welcome everyone to our panel, Is Enterprise the Entire Prize? And we will be discussing about the main topic, that is economic independence. So when we see the labor workforce participation, it has a very striking contrast. While the women participation is at around 48 to 49%, in contrast to men, that is about 80%. So that shows the pressing need of our country, where women need to come forward and participate in the labor workforce. But the question arises, is it enough to work on the social issues that persist in the nation? एक्चुअल में समाज में जो सोशल डीपर इश्यूज़ है वो सिर्फ क्या पैसे से ही हल होगी? सिर्फ इंटरप्राइज और हम जब एक लाइवलीहुड की बातें करते हैं, क्या ये उससे ही हल होगी, या इसके आगे और भी डीपर इश्यूज़ है जिसको वी नीड टू केटर इन, वी नीड टू फैक्टर इन? सो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है, पूरा इसी के इर्द गिर्द है. एंड I will be interacting more, I'll try to cover both English and Hindi, but for the, understanding and the comfortability of our speakers, is it okay if I speak in Hindi? Yes, Hindi is fine. Thank you. So, जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं या एक इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अगर महिला के पास हाथ में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, पैसे हो, तो शी कैन चेंज द वर्ल्ड. बट एक सर्वे के अनुसार 29% ऑफ मैरिड वीमेन फेसेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड द रेट इज़ मच मोर हायर इन वर्किंग वीमेन. तो जब वर्किंग वीमेन जिसके हाथ में दे हैव दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इन हैंड, बट उनके साथ भी वो वायलेंस का केस होता है. सो द क्वेश्चन स्टिल टिंगल्स कि क्या एक इकोनॉमिक्स हाथ में रहना ही इम्पॉर्टेंट है, या उसके ऊपर मार्केट जो है, एक्चुअल में व्हेन वी से इंटरप्राइज, तो मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बट इज़ इट
मार्केट हर टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ को हैंडल कर सकता है। लाइक हमारे स्पीकर्स जो हमारे साथ है, बहुत सोशल इश्यूज़ में उन्होंने काम किया है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए किसी ने काम किया है, कोई अल्कोहलिज्म के लिए काम किया है। तो ईच एंड एवरी आंसर्स मार्केट के पास नहीं होता है शायद। मार्केट कैन कनेक्ट यू टू लार्जर नेटवर्क, इंटरप्राइज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पैसा रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है। बट सोशल इश्यूज़ के लिए वी हैव टू कम फॉरवर्ड, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। सो विद दैट विल स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड हमारे पास बहुत फैबुलस स्पीकर्स हैं तीनों। सो मालती इज़ समवन हु हैज़ वर्क एंड टेकन अ सोशल इशू एल्कोहलिज्म। गांव में अगर हम देखें तो एल्कोहलिज्म इज़ समथिंग जो कि बहुत पेनफुल इन्वायरमेंट होता है उस चीज़ को लेकर के, वो वायलेंस की केस बोले या घर पे बच्चों के पढ़ाई के लिए बोले, बट इट अफेक्ट अ लॉट। महिला के हाथ में इंटरप्राइज करके बिजनेस करके पैसा तो आता है, पर वो पैसा यूटिलाइज़ कहाँ होता है? क्या वो पैसा यूटिलाइज़ हो रहा है बच्चों के पढ़ाई के लिए, घर में अपने लाइफ इंश्योर करने के लिए, या फिर वो दारू पीने के लिए? हस्बैंड वो कहाँ यूज़ कर रहा है? ये फ्रीडम कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में शायद आज भी नहीं है। सो मालती ने उस चीज़ को अपने पे लिया। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट इशू एल्कोहलिज्म बिकॉज ऑफ हर पास्ट, वो हम उनके स्टोरी में जानेंगे। एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी शी सफ़र्ड अ वेरी पर्सनल लॉस, बट उस लॉस के साथ, उस ट्रेजेडी के साथ भी वो आगे बढ़ी और उस चीज़ को उन्होंने एक चेंज लाया अपने पंचायत में, अपने गांव में। वी हैव दीपांतरी सरदार विद अस, जो कि एक्स मुखिया रही हैं अपने पंचायत में, एक सरपंच रही हैं। एक ऐसा समाज जहां हम बोलते हैं पैट्रियार्की, जहां हम बोलते हैं हमारे समाज में, वहां एक महिला का अपने घर से निकल के पावर में आना, जहाँ पे वो सोसाइटी शायद वो एक्सेप्टेंस उन्हें नहीं देता है, वो पोजिशनिंग नहीं देता है। बट और झारखंड में इट्स ओनली 3 टर्म जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे PRI का इलेक्शन हुआ था, दीपांतरी वॉज द वन हु स्टूड फॉर इट। तो वो एक तो PRI का वहाँ पे कल्चर नहीं झारखंड में, ऊपर से एक महिला होकर के वो निकल करके जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो व्हाट ऑल फेसेस चैलेंजेस शी फेस्ड। उसके बाद सेकेंड टर्म में इलेक्ट होकर के आना, एंड देन एज यू ऑल नो पावर पॉलिटिक्स हर जगह रहता है। वो पॉलिटिक्स में, वो पावर गेम में उनका डिथ्रोन होना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड पोस्ट से उनका हटना, बट फिर भी वो पैशन, वो उनका जो ज़ील है वो काम करने का, वो कभी कम ना होना। एंड आज शी इज़ इनटू एंटरप्राइज एंड ऑल, एंड शी इज़ अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लीडिंग अ ग्रुप। सो विल लिसन अबाउट हर जर्नी। एंड वी हैव दीपानिता विद अस, दीपानिता राभा। ये एक ऐसा चैलेंजिंग थीमेटिक एरिया पे काम कर रही है। शी इज़ वर्किंग इनटू राभा कुजीन, एक ट्राइबल कम्युनिटी से, राभा से, उनके कुजीन पे काम करना, एंड शी इज़ मेकिंग इट इनटू अ एंटरप्रेन्योरल वेंचर। सो उनका जर्नी कि कैसे एक शुरुआत हुई अपने ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, एंड हाउ शी इज़ टेकिंग दैट फॉरवर्ड, ये हम इनसे सुनेंगे और जानेंगे। सो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हुए दीपांतरी आपके पास आते हैं, एंड आपका जो जर्नी रहा है, एक गांव की महिला से एक मुखिया का सफ़र, मुखिया से एक सोशल एक्टिविस्ट, और एक सोशल एक्टिविस्ट से आज विमेन एंटरप्रेन्योर जो आप कर रही हैं, ये जर्नी के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। हेलो, बोलिए। मेरा नाम दीपांतरी सरदार, और मैं एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, जो 40 घर है, और मैं भी एक ट्राइब कास्ट की हूँ, जो भूमिज में आता है। तो जैसे मेरा जो गांव से शुरू, मतलब जीवनी शुरू होता है अपना घर से ही। ये जैसे मैं ग्रेजुएशन पूरा की, तो पूरा करने के बाद एक ट्रेनिंग हमको मिला था, जो टाटा स्टील फाउंडेशन के तरफ ही मिला था, और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू होती है। और पढ़ाई के बाद जब मैं छोटा छोटा ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती हूँ, बाहर गई भी हूँ, और एक काम करने का हमको पहले से ही एक सोशल वर्क करने का पहले से ही मेरा थोड़ा सा जुनून था कि मैं सोशल में ही काम करूँ, सामाजिक के साथ ही काम करूँगी, ताकि कुछ अच्छा काम करूँगी, लोग सोचेंगे कि नहीं दीदी थी तो अच्छा काम करके गई थी। इसके पहले मेरा
एक पारा टीचर में भी हुआ था, जो स्कूली शिक्षा में होता है पारा टीचर। उसमें मेरा गांव के स्कूल में ही पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन मैं उसको चॉइस नहीं की, फिर सोशल में ही मैं करने लगी। तो टाटा स्टील के साथ 2 प्रोजेक्ट में इसके पहले मैं थोड़ा सा एरिया में काम कर चुकी हूँ, हेल्थ के ऊपर ही। एक जो मदर एंड चाइल्ड के ऊपर काम चल रहा था, जो उस समय भी महिला का जो एम्पावरमेंट, मतलब कैसे उसको सशक्त बनाना, एसएचजी बनाना, हेल्थ के बारे में जानकारी देना, उसमें भी बहुत सारा ऐसा गांव था उस समय कि जागरूक ही नहीं था। एक साथ जुटने का मतलब एक साथ कैसे बैठेंगे, बैठना भी नामुमकिन था। तो हर घर में, हर गांव में जा के हम लोग मैं मतलब जानकारी देने लगी। पुरुष लोग बहुत सारे जगह में थोड़ा सा समस्या खड़ा करने लगा। बोले कि एक जगह अगर आप लोग बैठेंगे तो बहुत सारा ऐसा नेगेटिविटी बात होगा। बहुत सारा बैठने भी मना करते थे कि आप मत जाइए, वहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चर्चाएं होती है, आप खराब हो जाइएगा। तो ऐसा करते करते गांव में पूरा घूमने लगे, जब लोग जानने लगे कि नहीं, एक अगर यूनिटी बनेगा तो महिला आगे बढ़ सकती है। तो बहुत सारा ऐसा समस्याएं होने लगती है उस समय। तो जैसे 2 प्रोजेक्ट में मैं काम की, एक हेल्थ में और दूसरा एडोलेसेंट के ऊपर भी एक रिश्ता प्रोजेक्ट चला था, उसमें मैं भी मैं काम कर चुकी हूँ। उसमें एडोलेसेंट का जो भी बॉडी है उसका चेंज कैसे होता है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, तो उस तरह का मैं काम कर चुकी थी। तो कम से कम 5 साल मैं काम कर चुकी हूँ अपना एरिया में। फिर चेंज होके फिर सरायकला में चल गई, मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट में मैं चल गई, उसमें भी मैं वही एडोलेसेंट के ऊपर काम कर चुकी हूँ। फिर ऐसा घूमते घूमते सामाजिक स्तर में काम करते करते मेरा थोड़ा सा आइडिया भी होने लगा। 2010 में जैसे जब इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू होने के पहले बहुत सारा मतलब लोग, पहला इलेक्शन था झारखंड में, तो मैं सोची कि अगर इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती हूँ और समाज के लिए हो सकता है और थोड़ा सा पावर आ जाएगा तो मैं बहुत मतलब अच्छा काम कर सकती हूँ। हर जगह जहाँ पे लोग नहीं सुनते हैं, ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पे आ जाऊँगी, सत्ता में आ जाऊँगी, तो फिर काम अच्छा होगा और अच्छा लोगों को अच्छा सेवा दे पाऊँगी, ये मेरा मन में आया। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं बोलूँ कि ट्रेनिंग भी बहुत सारा हमको टाटा स्टील के साथ, टेल्को का भी बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा ट्रेनिंग, मतलब अपने आप को रेडी होने के लिए मैं ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग में और एडवेंचर का भी मैं कोर्स की हूँ, जो टाटा स्टील का ही एक एडवेंचर कोर्स चलता है, जो मोटिवेट करने के लिए, जो बॉर्डर में हम लोग गए थे, बीएसएफ और हम लोग जमशेदपुर से 8 लड़की गए वहाँ। और जो उनका बॉर्डर के जो गांव है वहाँ के लोगों का जो जैसे रेप केसेस महिलाओं के साथ, बच्ची के साथ होते थे, तो उसका अवेयरनेस के लिए हम लोग बॉर्डर में 3 स्टेट में घूमे थे, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में। तो ये बहुत मतलब आगे बढ़ाने का हमको बहुत सपोर्ट मिला। और मन में जो डर था कि कहीं भी बात करूँगी तो मेरा बात लोग सुनेंगे कि नहीं, तो वो मेरा बहुत मदद हुआ कि मैं ट्रेनिंग करके आगे बढ़ने का। तब जब मैं सत्ता में आई 2010 में, इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन था, तो बहुत कंपटीशन हुआ। तो उस समय मैं हार गई। हारने के बाद फिर से प्रोजेक्ट में मैं काम करना शुरू की। काम करना शुरू करने के बाद फिर से मैं वही और थोड़ा सा ज़्यादा सामाजिक स्तर पे जाने लगी। जाने के बाद फिर लोगों में जब नेक्स्ट इलेक्शन आया 15 में, तो 15 में जब नेक्स्ट इलेक्शन आया
तो फिर कुछ लोग बोलने लगे। उस समय जितना महिलाएं और भी खड़ी थी, उनका हस्बैंड लोग आके बोले कि मैडम मतलब सब में जितना 8-10 हम लोग महिलाएं खड़ी थी, तो वो लोग बोलने लगे कि मैडम 8-10 में से हम लोग आप ही को जान रहे हैं कि शायद आप चला पाइएगा बोल के। तो वो लोग प्रमोट किए मेरे को कि मैडम आपको खड़ा होना होगा। तो हम बोले ठीक है, तब अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं ज़रूर खड़ा होंगी। तो वो लोग सपोर्ट किए और मतलब बहुमत मतलब एकदम फुल्ली मैं जीत के आई। और उस समय मेरा बहुत हमको खुशी लगा कि मेरा जो एक मकसद था कि अगर मैं पावर में आ जाऊंगी तो फिर अच्छा से काम कर सकती हूँ। तो मेरा एक रास्ता खुल गया। और पंचायत इसके पहले भी 5 साल काम कर चुकी थी, लेकिन जहाँ पे पंचायत भवन या तो ऑफिस जहाँ पे होता था, वहाँ एक खंडहर जैसा ज़मीन था और भवन भी वहाँ पे नहीं था। जो पहले मुखिया थी वो बैठती भी नहीं थी। तो मेरा एक पहला मकसद था कि भाई मेरा जो एरिया है, मेरा जो 6 गांव को मिला के एक पंचायत होता है, तो एक पंचायत का जो हमको सरकार ने बना के दिया है एक ऑफिस, तो मैं उसको काहे नहीं ऑफिशियल का रूप दे सकती हूँ। तो मैं अपना काम में शुरू हो गई और अपना ऑफिस का जितना भी वहाँ पे जैसे बिल्डिंग नहीं बना था, बिल्डिंग बनवाना, बैठना, कंटिन्यू बैठना, मतलब सुबह से शाम तक मैं वहाँ पे बैठे रहती हूँ, लोगों को अवेयरनेस करती हूँ। फिर छोटा छोटा गांव लेवल में भी अवेयरनेस करना शुरू किए कि वहाँ पे क्या क्या योजनाएं आती है, क्या क्या आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं, क्या क्या वहाँ ऑफिस जाने से आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो छोटा छोटा प्रोग्राम हर गांव में एक पंचायत में 6 गांव आता है, तो 6 गांव में छोटा छोटा प्रोग्राम करने लगी। फिर धीरे धीरे पंचायत में एक एक्टिविटी होने लगा, जैसे आधार कार्ड बनाना, बैंक पासबुक बनाना, जॉब कार्ड बनाना, नरेगा का काम कैसे शुरू होता है वो सारा चीज़। इसके पहले लोगों को जैसे पोस्ट ऑफिस में खाता था, बहुत उसमें से नेगेटिविटी भी होता है कि किसी का नाम से किसी को दूसरा कोई उठा लेता था पैसा। तो उस तरह का जब होने लगा तो फिर मैं सोची कि क्यों नहीं हम बैंक में भी इन लोग का खाता खुलवा दें। तो उसके लिए भी मैं छोटा छोटा अपना पंचायत में भी मतलब अपना गांव में भी कैंप करवाई और पंचायत में भी मतलब बृहद परिमाण में हम कैंप करवाए थे। आधार कार्ड और बैंक खाता, फिर गांव में पंचायत आपके द्वार बोल के एक प्रोग्राम भी चलाए, जहाँ पे लोगों का ऑन स्पॉट काम हुआ। छोटा छोटा जितना भी सरकारी विभाग है सबको मैं वहाँ अपना गांव स्तर तक लेके आए और सबको सेवा देना शुरू किए। कम से कम 15 से 18 के बीच में एक ऑफिस को मैं मतलब वहाँ का जो पंचायत ऑफिस है मैं अपना ऑफिशियल लुक देने लगी। तब जब जिला से लोग वहाँ आए देखने के लिए, तो फिर मतलब पहला जो उनका विजिट था उसी समय वो उस पंचायत को सिलेक्ट किए कि एक बेस्ट पंचायत के रूप में उसको रखा गया। जो जिला से लेके सेंट्रल तक मतलब टॉप 10 में जो नाम आता है सेंट्रल तक, तो उसमें से मेरा नाम आया कि एक पंचायत को किस तरह से ऑफिशियल लुक दिया जाता है। सारा एक्टिविटी वहाँ पे मैं शुरू की, ताकि मेरा भी एक मकसद था कि हम किसी को ब्लॉक ऑफिस नहीं जाने देंगे। मेरा सारा काम, लोगों का सारा काम मैं अपना ऑफिस में ही करूँगी। तो उसमें जो ऑपरेटर, जो वहाँ का सचिव, मनरेगा का जो वर्कर, जो सहिया दीदी लोग, हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना भी, मैं वहीं पे एक्टिविटी करवाने लगी। तो इस तरह का मेरा काम बढ़ते गया। फिर वहाँ पे ऑफिस में ही एडोलेसेंट को ऊपर मैं काम की, जो एडोलेसेंट को कैसे किस तरह से वो लोग को मोटिवेट किया जाए, वो लोग के लिए छात्रावास का मैं उसी ऑफिस में छात्रावास का मैं प्रबंध किया। और बच्चों को कैसे एक बैंकिंग को कैसे किस तरह से उन लोग को जोड़ा जाए, रेलवे में कैसे तैयारी किया जाए, तो उस तरह का एक छोटा सा छात्रावास का भी मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। और 2-3 कंटिन्यू मेरा वहाँ पे प्रोग्राम चलता है, जो
जैसे ड्राइविंग का जो 8 पास 9 पास बच्चा है जो छोड़ दिए हैं अपना आर्थिक स्थिति के कारण, तो उनका भी मैं वहाँ पे एक्टिविटी करवाने लायक मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ एडोलेसेंट के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कुछ प्रोग्राम जैसे महिला दिवस, वो लोग को मतलब आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को कि एक अच्छा अगर जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाए प्रोत्साहित किया जाता है, तो फिर वो लोग को मैं प्रोत्साहित एक सर्टिफिकेट बना के प्रेजेंटेशन करती हूँ। फिर वो लोग को अवार्ड एक करती हूँ कि इन लोग को अवार्ड देने से वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अपना वहाँ जो ऑफिस है जमने लगा और एक एक एक्टिविटी वहाँ पे होने लगा, और तब मेरे को भी खुशी लगा कि चलिए लोगों में बहुत अवेयरनेस मतलब जानकारी हो गया है। कुछ भी मैं बोल देती तो वो लोग सारे लोग दौड़ के चले आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर मतलब दौड़े चले आते हैं। तो इस तरह का मेरा मतलब प्रोग्राम चलते रहा। फिर बाद में जब दूसरा जो है चैलेंजेज भी बहुत सारा आया था। जो पहला जब मैं शुरू की थी 16 में, तो जैसे राशन कार्ड जब बन के आया और जो फॉर्म भरा गया था वो आके ब्लॉक में ही फेंका गया था। तो जब फेंका गया तो देखिए कि जाके सबका राशन कार्ड बन गया, मेरा वहाँ नहीं बना। तो मैं खुद जाके वहाँ पे ब्लॉक ऑफिस में जाके तुरंत बैठ के पूरा 1200-1300 राशन कार्ड का फॉर्म तुरंत सिग्नेचर करके पूरा ज़िला में भेज दिए और तुरंत बना के फिर जब बन के आया, बनने के बाद कुछ मतलब एक साथ में तो सारा कुछ नहीं बनता है, कुछ बन के आया। तो फिर जब ब्लॉक में ऑफिस में पंचायत ऑफिस में मैं बांटने लगी हूँ, तो जब बांट रही थी तो बहुत सारा ऐसा अपोजिट पार्टी का जो लोग थे तो वो लोग पूरा घेर दिए मेरे को कि बोले अगर आपके पास पूरा राशन कार्ड नहीं है तो क्यों बांट रहे हैं। इस तरह का पूरा हमको घेर दिया और पूरा चाबी लगा दिया था पंचायत ऑफिस के अंदर। तो मैं बोली कि देखिए कुछ भी काम एक साथ नहीं होता है, मेरा कोशिश है कि आप सभी को जितना अभी है आज बांटने दीजिए, उसके बाद जैसे आएगा हम आपको अपना घर तक मैं पहुंचा दूंगी, आपको आने का ज़रूरत भी नहीं है। तो उस समय वो लोग मेरे बात को लोग माना और मान के फिर जितना आया मैं उस समय बांटी। फिर बाद में एक महीना के बाद फिर जब पूरा आया बन के, फिर मैं अपना गांव में कैंप लगा के वो लोग को बांट दिए। तो वो लोग भी फिर मतलब जान गए कि ये पीछे हटने वाली नहीं है। तो उस समय से वो लोग थोड़ा सा मतलब कि टक्कर नहीं लेंगे जैसा बात हुआ। फिर जब मनरेगा का काम हुआ तो अपने एक जो पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, वो जब मनरेगा का काम करवा रहे थे तो वो भी बोले कि मनरेगा में पैसा नहीं मिलता है, आप लोग मत करिए। मेरे को बोले कि आप फंस जाइएगा, अब मत काम करवाइए। तो हम बोले काम करवा के तो देखते हैं कैसे फंसा जाता है, देखेंगे। हाँ, तो मैं तब पर भी मैं अपना काम को जारी रखी और करके दिखाई। तो फिर जब वो जानने लगा कि नहीं ये मैडम के साथ नहीं हो सकता है, तो फिर बाद में वो क्वेश्चन नहीं किया। तो इस तरह का बहुत सारा चैलेंजेज मेरे साथ हुआ है। और कभी कभार तो कुछ भी प्रोग्राम में भी जैसे झगड़ा वगैरह भी होता है तो ज़्यादातर मुखिया को मतलब सरपंच को ही बुलाया जाता है। तो रात में भी कहीं कहीं 2-3 जगह ऐसा हुआ है, कोई रात में भी गए हैं बुलाया था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अपोजिट पार्टी सोचते हैं कि ये लड़की है तो फिर रात में बुलाने से तो आएगी नहीं, फिर हम लोग बात इसको बना देंगे कि ये तो मतलब ऐसे का बने हैं, मतलब कुछ काम करती नहीं है। तो इस तरह का बात बनाने के लिए मतलब पीछे लगे रहते हैं। तो मैं जहाँ पर भी कुछ भी होता है तो मैं तुरंत चल जाती हूँ और बैठ के सॉर्ट आउट करती हूँ। तो मतलब 2018 में एक बेस्ट मुखिया हमको मतलब जबलपुर में अवार्ड मिला था एक बेस्ट ऑफिस बेस्ट मुखिया के तौर पे। तो उस समय हमको बड़ी खुशी लगा था। और
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस मतलब ऐसा मैं काम कर पाऊँगी। और मेरे साथ और भी मेरा टीम एक मैं बनी थी जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनका बात उनको बैठा के बात करती थी हमेशा कि मेरा क्या गलती हो रहा क्या नहीं, सारा चीज़ वो लोग भी हिंट्स देते रहते हैं और मैं उनके सहारे भी बहुत आगे तक गई हूँ। और अभी जब मतलब पूरा स्टेट तक मेरा नाम आया तो धीरे धीरे बहुत राजनीति भी हुआ मेरे साथ इस बार। और इस बार मैं लड़ी थी लेकिन सेकंड पोजीशन में था मेरा और मैं इस बार नहीं जीत पाई। फिर नहीं जीत पाई तो नर्वस नहीं हुए, अपना काम मेरा अभी तक अपना काम चालू है। मैं अभी भी मतलब अगर मान लीजिए पावर नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊँगी, अभी भी मैं अपना काम चालू रखी हूँ। मतलब जैसे पेंशन हुआ, जो भी गांव का जो ग्राम सभा होता है तो वो सारा चीज़ मैं अभी भी करती हूँ और लोग मेरे को बुलाते हैं। और दोनों का जब जेंट्स और लेडीज़ का बात आता है तो अभी जो जेंट्स है अभी लोगों में एक मतलब बोलते हैं लोग, डायरेक्ट तो मेरे को नहीं बोलते हैं लेकिन एक आवाज़ आता है कि मैडम अगर मैडम ही रहती तो अच्छा रहता और सर है तो उस तरह का। आपकी जो कहानी है वो काफ़ी पैशन से भरपूर है एंड उनका जो बताने का है वो हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को कि किस तरह से आप आगे बढ़े। लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और आप एक ट्रू एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है कि जब हम कहते हैं कि संविधान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो एक अवेयरनेस दिया है, वो पावर में आप हो चाहे पावर में ना हो, बट समाज के लिए जो आपका काम है वो कभी रुकेगा नहीं। आपके इंटरप्राइज के काम पे हम आएंगे आगे। हाँ। बाकी दो से भी थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि शाली उधर से मुझे देख रही है कि समय लिमिटेड ही है। सो थैंक यू दीपांत्री दी, और हम आपके पास लौटेंगे फिर से। वेलकम। और अभी हम चलते हैं मालती के पास और मालती से सुनते हैं उनकी कहानी कि क्यों ये अचानक से एक दिन गांव की जो महिला, गांव की जो बहू है, उसको वो ख्याल आया कि मुझे नशाबंदी अपने गांव में रोकना है। और गांव में इल्लीगल दारू की जो भट्टियां होती हैं वो काफ़ी ऑपरेशनल थी और किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल पावर से लेकर के डीसी तक, ब्लॉक ऑफिस तक जा करके ये अकेले लड़ी हैं। तो वो कैसे वो सोच आया मालती और वो शुरुआत आपकी जर्नी की कैसे हुई? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इट माई प्लेजर कि आप लोग मेरे जर्नी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा नाम मालती सिंह है, झारखंड से। मेरी फाइट तो बचपन से ही शुरू हो गई अल्कोहल से। जब मैं 5 में पढ़ती थी तभी थोड़ा सा हम कि इस तरह से ज्ञान आया कि हाँ कि शराब के चलते ही घर घर में लड़ाई होता है और परिवार कैसे बिखरता है और घर का खर्च भी नहीं चल पाता है। तो उस समय से ही थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसा आया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अचानक से जहाँ पर हम वहीं खेल रहे थे जहाँ पर जब दारू का भट्टी ये होते हैं बेचते हैं, वो लोग आना जाना करते हैं, वहीं पे खेल रहे थे वो 4-5 बच्चे, मैं भी छोटी थी। तो उस समय अचानक से पुलिस आ गई वहाँ पे। तो हम लोगों ने भागा नहीं, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता था कि क्या भाग कर क्या करना, हम तो खेल रहे हैं, बड़े लोग तो भाग गए। तो फिर बच्चे लोग को वहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पे कौन शराब बेचता है बताओ। बहुत अच्छा से फुसलाकर बहलाकर पुलिस वहाँ पे पूछे सबको, लेकिन कोई नहीं बताया। लेकिन हमको क्या लगा कि हम बता दिए, और बता तो दिए कि मेरे अंकल ही तो बेचते हैं। लेकिन हाँ, तो उनको पकड़ कर फिर ले गई पुलिस। फिर वो तो बाद में पता नहीं था कि उनको पकड़ कर ले जाएगी और फिर हमको बहुत डांट पड़ेगी और सुनना पड़ेगा। तो ये फिर बाद में हमको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। और लेकिन हमको उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या। हमको समझ में आ रहा था कि जो बेचता है उसको सज़ा भी मिलना चाहिए। तो क्योंकि उसके चलते घर परिवार सब कुछ बिखर जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। मेरे परिवार में 5 भाई बहन हैं। तो
मेरी माँ को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, और हम लोग माँ बेटी मिलकर ही घर चलाना और फिर उसी के साथ भी पढ़ाई करना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर उस तरह से करता गया 15 साल में ही हमको शादी दे दिए। तो वो भी प्रेशर में ही थे शायद, इसलिए शादी दे दिए गार्जियन। तो शादी होने के बाद हम सोचे चलो एक जगह से तो अल्कोहल से छुटकारा मिला शायद, तो कुछ शांति लगा। लेकिन ससुराल में आने के बाद वहाँ भी आए तो वहाँ भी हस्बैंड और फिर और भी आसपास के जो गांव, पूरा पंचायत ही खराब, एकदम पूरा भट्टी चलता है। एक गांव में 8-10 भट्टी चलता था, और उसमें तो एक पंचायत में सोचिए 6 गांव है, तो और कितना सारा भट्टी। और उसमें जितना भी से मतलब अल्कोहल से ये है बर्बाद हो चुका है। जो युवा जनरेशन है वो भी पढ़ाई नहीं, सिर्फ अल्कोहल या पी कर के इधर उधर लेटे या फिर रोड किनारे पड़े रहते, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई जल्दी मर जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह घटना होता था। तो हमको बहुत परेशानी लगता था कि ये इतना स्थिति बिगड़ता जा रहा है गांव का, और फिर हम लोग कहीं एक लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे, डेवलप नहीं हो रहा है गांव का। तो ये हम सोचते रहते थे क्या कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। तो एक पढ़ाई भी तो उतना हम तो हुए नहीं जो हम कुछ करें। तो फिर उस तरह काम, फैमिली में 16 मेंबर, उन लोगों का खाना बनाना, फिर सास का ताना सुनना, और ऊपर से इधर हस्बैंड भी उस तरह से। तो वो हस्बैंड अच्छा काम करते थे, फिर भी गांव में आप जहाँ देखिए गेहूं के साथ क्या बोलते हैं, कुछ पिसा जाता है, अगर गेहूं को पीसते हैं तो घुन भी पिसा जाता है। उस तरह से हो गए हम, वो परिवार में एकदम हमको सिर्फ, और कहीं निकल नहीं पाते थे, हम क्या कुछ करें। फिर वहाँ पे एक टाटा स्टील द्वारा मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे, थोड़ा बहुत बैठते थे तो अच्छा लगता था। क्योंकि वहाँ गांव में हम लोग के महिला लोग निकलती भी नहीं थी, ग्राम सभा में बैठती भी नहीं थी, किसी की बात भी नहीं सुनती थी, ऐसा चीज़ तो था ही नहीं। तो फिर वहाँ पे हमको एक लेडीज़ को कन्विंस करके एक ग्रुप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था, हम क्या करें क्या नहीं। उसी तरह हम लगे रहे। फिर 6-7 इस तरह से ग्रुप बनाए, सबको कन्विंस करके। ग्रुप बनाने के बाद हम सोचे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा अल्कोहल के लिए। सबको पूछे, सबको कन्विंस करते थे कि कुछ तो करना होगा। मैं सिर्फ अपने लिए सोचती थी, हम सोचती थी उन लोग को, वो लोग नहीं सोचे अपने लिए, लेकिन उन लोग को शायद उतना सोच हो सकता है कि नहीं, लेकिन हम अपने लिए मेरे जो घर बर्बाद हो जा रहा है अल्कोहल से, हम अपने ही सुधारे। सबको इतना कन्विंस करके वो लोग को मीटिंग में फिर निकाले, वो लोग मीटिंग जाने लगी, ग्राम सभा में बैठने लगी। फिर उसी तरह हम लोग मिल करके रैली चलाए अपने गांव में। अपने गांव में रैली चलाने के बाद देखे कि सारे महिला लोग निकले, और फिर दूसरे दिन भट्टी जितने थे सबको लोगों ने इतना, उन लोग में भी पावर आ गया कि हमको कुछ करना नहीं पड़ा। वो लोग खुद से जितने भी सारे भट्टी थे सबको तोड़े वो लोग। फिर वो भी अच्छा लगा, वो हम लोग के गांव में स्टार्ट किए। तो फिर और भी आसपास के गांव में देख के लेडीज़ लोग पंचायत में बैठक की, फिर वहाँ से पूरे पंचायत से भट्टी तोड़वाए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा प्रयास से ही इतना भट्टी तोड़वाए। अल्कोहल से तो छुटकारा मिल ही गया, थोड़ा बहुत तो चुपके कोई चला ही रहा है। लेकिन जैसे युवा पीढ़ी जैसे बर्बाद था पहले, ताश की पत्ती खेलना, और अभी देखिएगा अभी गांव में कोई नहीं मिलेगा, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और हर महिला एकदम आगे निकलती भी है, मीटिंग में अपने बात को ग्राम सभा में भी रखती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखकर। और मेरे तो बहुत अच्छा लगा कि इस काम में सारा भट्टी तो बंद हो गए, लेकिन इसमें बहुत कुछ हमको खोना भी पड़ा। जैसे कि मैं तो फैमिली में 16 मेंबर हैं, मेरी 3 बेटी है, और वो जो बेचते थे, जो दबंगी लोग थे, वो बहला फुसला कर मेरे हस्बैंड को पॉइजन दे दिए, तो वो अब नहीं है। तो इसमें बहुत ख़राब लगा कि वो अब नहीं है। टाटा स्टील तरफ से अवार्ड भी दिया गया 2019 में। तो
ये अच्छा लगा कि पूरा पंचायत से अल्कोहल जो भट्टी था वो बंद हो गया और अब नहीं चलता है, और जो युवा पीढ़ी जो है वो अभी चलने लगा है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पॉइजन दे दिए, तो अब जो इनकम का जो ज़रिया था मेरे घर को जो चलाने वाला था, अब वही नहीं है। तो ये अच्छा लगा कि अल्कोहल का भट्टी उट्टी तो बंद हो गया, सारा कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन अब मेरा तो लाइफ तो ये हो गया। तो फिर हम बहुत हार चुके थे अपने लाइफ से कि क्या करें, क्योंकि मेरे फैमिली में जो लेडीज़ हैं सब लेडीज़ हैं, और जो ब्रदर इन लॉ मेरे देवर हैं वो हैंडीक्राफ्ट हैं, तो सब सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहते हैं, और जो इनकम का जो ज़रिया है वो है ही नहीं था। तो मैं क्या करूँ क्या नहीं, फिर हैंडीक्राफ्ट का काम मैंने शुरू किया। तो फिर देखते देखते धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया। इसमें मैं तो अकेले करने से तो नहीं होगा, मैं सोचने लगी कि ये अकेले करने से तो सिर्फ मेरा घर का, मैं अपने हालत सुधार रही हूँ। मेरे घर में जो है सिर्फ लेडीज़ ही हैं, तो कृषि भी करती हैं और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उसमें घर चलाते हैं बस। तो फिर ये देखते देखते कि और भी तो आसपास की महिलाएं हैं गांव की, तो उनका भी तो वही हाल होता है। तो हम सोचे नहीं, सब मिलकर एक हम लोग इंटरप्राइजेस कंपनी का स्टार्ट किए। हम लोग कंपनी का नाम है प्रगति उद्योग महिला समिति। इसमें हम लोग बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का काम, होम डेकोरेटर का काम, वो सारा चीज़ करते हैं। इसमें जैसे हम लोग का शॉप बनाना, पेंटिंग का काम, आपका वुड क्राफ्ट का, बम्बू का, टेराकोटा, वो सारा सब लेडीज़ हम लोग इसमें जुड़े हैं। 100 महिलाएं हैं इसमें जुड़ी हुए हैं, और वो हम लोगों ने उद्योग शुरू किया और अपने पैरों पे खड़े हुए और खुद का इनकम भी करते हैं। जो हस्बैंड जो गांव से घर से बाहर निकल नहीं पाती थी घर के कामकाज से भी, और फिर बच्चे को देखना, घर संभालना, फिर बाहर कोई काम नहीं जो जा पाती थी, उस सबको हम लोग जोड़े और अपना समय निकाल करके वो काम हमने शुरू किया धीरे धीरे। और वो अभी एक कंपनी खड़ी होने वाली है जो स्मिता में प्रेजेंट करेगी। इतना ही बोल के मैं धन्यवाद। थैंक यू मालती। जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केट के पास हर चीज़ का आंसर नहीं है। शायद यही वो संदर्भ है जो मैं उस समय बताना चाह रही थी कि मार्केट के पास अल्कोहल खुद में एक मार्केट है, खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उस बिज़नेस को आंसर शायद उस मार्केट के पास नहीं था कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। और शायद मालती जैसे लोग ही हैं जो आगे बढ़ते हैं, और इतना पर्सनल ट्रेजेडी होने के बाद भी वो रुकी नहीं। उसके बाद भी हिम्मत था कि वो खुद के लिए सिर्फ नहीं सोची, वो चाहती तो आराम से कोई छोटा जॉब करके अपना घर परिवार चला सकती थी, लेकिन उस समय भी वो जज्बा था उनके पास कि मुझे अपना अकेले का नहीं सोचना है। मेरे गांव में जो और भी महिलाएं हैं उनका भी तो वही हाल है, उनके घर पे भी तो सेम चीज़ चल रहा है, उनके पास भी तो पैसे की कमी है। तो ना सिर्फ अपना घर चलाना है बट कैसे मिलके उनका भी घर चलाना है। और आज इनके ग्रुप में लगभग 100 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी ये लोग अपना ब्रांड भी लॉन्च करेंगे और नेशनल मार्केट में अपने आप को लेकर के आएंगे। सो थैंक यू मालती। अब हम चलते हैं दीपान्विता के पास, और दीपान्विता आपसे जानेंगे कि बीइंग अ विमेन, एक तो महिला होके एक एंटरप्राइज को खड़ा करना, एक क्लाउड किचन खड़ा करना, एक वेंचर अपना स्टार्ट करना, वो खुद में अपने में वो चैलेंजिंग है। और वो भी उस थीमेटिक एरिया में अपने जो आपका ट्रेडिशन, आपका जो कल्चर है, उस कुजीन को, लाइक राभा कुजीन जो है आसाम एंड मेघालय तक ही वो सीमित है। शायद नेशनल यहाँ पे इस साइड पे लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो कैसे आप वो कुजीन को नेशनल पूरा पहचान दिलाएं, और क्या क्या चैलेंजेस आया और आपका जर्नी कैसे रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो लंच का टाइम है के बारे में बात करना है, थोड़ा भूख ज़्यादा लगेगा तो हमको कोशिश मत। तो एनीवेज, मेरा नाम दीपान्विता राभा है और मैं मेघालय से नॉर्थ गारो डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गाँव मानिकगंज से बिलोंग करती हूँ, और प्रोफेशनली आई एम स्कूल टीचर। तो अभी खाने पे आते हैं सीधा। तो लाइक मेरे खाने का ये सिलसिला शुरू होता है घर से।
मेरा पापा बहुत फूडी थे। पापा को था खाने का शौक, मम्मी को था बनाने का शौक। हाँ, बचपन से जब से पैदा हुए हैं हम लोग मतलब तरह तरह के खाने हम मम्मी बनाते हैं, खिलाते हैं, पापा खुश हो जाते हैं, हम भी खाते हैं, शौक से खाते हैं। और मम्मी था मेरा टिपिकल इंडियन मॉम, जिसको मतलब बच्चों को सब सिखाना है, और स्पेशली लड़की है वो तो सब आना चाहिए। तो एकदम हम करीब शायद 6 साल ऐसे उम्र से हम लोगों को किचन में घुसाते हैं मम्मी हेल्प करने के लिए। हम भी घुस जाते थे। धीरे धीरे हम पहले थोड़ा वो गुस्सा आता था कि मम्मी काम करवा रही है, बाद में लगा कि चलो करते हैं। तो आज थोड़ा आलू का छिलका होता है, आज ये बना रहे हैं, थोड़ा ये इसमें थोड़ा भी हिला रहे हैं, करछी हिला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़ा ना वो इंटरेस्ट आने लगा। 6 साल की उम्र से हम मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 years में ऑलमोस्ट सीख गई कि नॉर्मल खाना कैसे बनाते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा बड़े हो गए। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे कि हमारे गांव में ऐसा होता है कि कोई कैटरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई भी मतलब प्रोग्राम रहता है शादी वगैरह में सब गांव के हमारे मामी मामा आंटी सब वो सब खाना बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गांव में जितनी भी लड़की होती है 8 to 15, 16 या 20 years, उन लोग को क्या करते हैं, वो लोग हेल्प करने के लिए लेके जाते हैं किचन में। कोई पानी मतलब लाने में हेल्प कर रहा है, तो कोई सब्जी काटने में, ऐसे ही मतलब। तो हमको क्या करता था, सीधा किचन में घुसाता था। किचन में घुसा के हमको क्या करते थे, उसमें खाने में ना ये करो ऐसा करते थे। तो हम भी शौक से वहाँ पे बैठ के उन लोग को हेल्प करते थे। हेल्प करते करते हम ये देखे कि ट्रेडिशनल कुजीन्स जो बनते थे शादी में या कोई भी ओकेजन में, तो सब थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आने लगा। हम भी सीख गए, ऑलमोस्ट सीख गए बड़े होते होते। फिर एक ऐसा दौर आ गया जैसे हम 15 या 16 ईयर्स ऐसा हो गया, तो हम ये देखे कि जो वो था ना, वो दौर था जब हम बचपन में देखे थे, केले के पत्ते में खाने का टाइम से लेके इतना चेंज हो गया कि वो डिस्पोजेबल प्लेट आ गया। खाने में वो जो ट्रेडिशनल हम लोग का कुजीन था, उसके जगह वो एकदम ऑयल मसाला वाला बटर चिकन वो सब आ गया। ठीक है। फिर हम जैसे बड़े हो गए तो हम लोग को अभी पता है कि क्या अच्छा है सेहत के लिए, क्या खराब है। तो हम थोड़ा मतलब ये लिखने लगे कि हमारे खाने में इतना मतलब अच्छा वो है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। ट्रेडिशनल खाने में हमारा ऑयल नहीं पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि ऑयल हमारे सेहत के लिए सबसे डेंजरस है। जो हमारे ट्रेडिशनल कुजीन से वो उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालता है। मसाले में सिर्फ अदरक और चिली। तो हम ये देखते हैं कि अभी तो उसके जगह ये मसाला वसाला सब आ गए, लोग बीमार पड़ने लगे, और ऊपर से आ गए जंक फूड, ये फास्ट फूड आ गए। हाँ, कितना फास्ट दौड़ता है पता नहीं, लेकिन वो आ गए फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में। अभी सबको लगता है कि शादी में कोई भी ओकेजन हो तो ये होना चाहिए, क्या नूडल्स वगैरह होना चाहिए। तो लोगों को ऐसा हो गया कि ट्रेडिशनल खाने से वो लोग कब का हट चुके हैं। वो लोग मतलब अभी ये फैंसी कुजीन्स में इंटरेस्ट देने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो हम ये सोचे कि हमारे खाने में तो बिना ऑयल बिना मसाला का है। हम लोग यूज़ करते हैं आप शायद आप सबको पता होगा कोलखार के बारे में, अल्कलाइन एक्सट्रैक्ट, जो बनाना के मतलब ट्रीज को हम लोग जला के उसका राख बना के उसको यूज़ करते हैं खाना पकाने में। सो वो इतना हेल्दी है कि उसका हेल्थ बेनिफिट आप लोग सुनोगे, आपको सबको पता है। आज तो अभी तो सबका इशू है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या वो सबका इश्यूज रहता है। तो वो सब के लिए वो बहुत अच्छा है। तो हम कहीं ना कहीं लगा कि ये हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, लोगों में क्यों नहीं बोल रहे। हमारे लोग ऐसा हो गया कि वो सब छोड़ के वो जंक फूड वगैरह कुछ यूज़ करने लगे, वो मसाला वाला। तो हम क्या करें, हम वही सोच रहे थे कि लोगों कैसे, और ऐसा हो रहा था कि खुद का खाना, द वे ऑफ लिविंग, वी आर लूजिंग आवर वे ऑफ लिविंग। एंड losing of way of living is losing of our own identity. So और आइडेंटिटी का खो जाना मतलब एक टाइप का ख़त्म। So हमको लगा कि नहीं, हमको ये इसमें थोड़ा काम करना है। तो हम क्या किए कि एग्जीबिशंस वगैरह करने लगे, ट्रेडिशनल कुजीन्स को लेके, जहाँ भी कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह रहता है, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि थोड़ा सा मतलब छोटा मोटा एक सेटअप लगा के
वहाँ पे एग्जिबिट करने लगे, तो लोगों को मतलब दिखे क्या है क्या नहीं है। हाँ, दिखने में थोड़ा वो लुक्स अच्छा नहीं है एक्चुअली, हमारे जितने भी ट्राइबल कुजिन से इतना मतलब बिना ऑयल बिना मसाला का तो दिखता भी अच्छा नहीं है ना, कलर टेम्पटिंग नहीं होता है। और हम लोग ऐसा है कि लाइक मुंह से पहले हम लोग आँखों से खाते हैं। हाँ, आँखों को भाया तो सबको भाया, वो है कि लाइक हाँ ये दिख रहा है, ये हाँ थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, ये ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रेडिशनल कुजिन को कोई मतलब हाथ भी नहीं लगाता था, तो लोगों को भी लगा कि चलो छोड़ो, ट्रेडिशनल कुजिन्स कौन नहीं खाएगा, वो है। तो हमने क्या किया उसमें हमको सोशल मीडिया बहुत हेल्प किया कि हम क्या किया, बना के ना उसको अच्छे से प्लेटिंग करके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे देने लगे। तो कहीं ना कहीं लोग लाइक ये क्या है, ये कैसा बनता है, क्या है क्या नहीं है, तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा सोशल मीडिया के दौरान। तो हम बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, तो लोगों को अभी तो वैसे भी ज़माना है, लोग मतलब खाते तो है बटर चिकन, बटर मसाला एंड ऑल, बट जैसे बाद आता है ऑयल फ्री खाने का, हम दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सबको लगता है हाँ ऑयल फ्री खाना चाहिए। तो सब इंटरेस्ट देने लगा, स्पेशली सोशल मीडिया में। ओके, तो वही स्टार्ट हुआ। फिर तभी आ गया लॉकडाउन मेरे लाइफ में। तो अभी लॉकडाउन के दौरान तो स्कूल बंद था, ऑलमोस्ट सब डिप्रेस्ड, तो हम भी बैठे थे घर पे, तो हम क्या ही करें। तो घर में जो भी मिलता है, क्योंकि बाज़ार भी सब बंद था, तो घर में मतलब हम लोग का ये ऐसा है कि गांव में रहने का एक फ़ायदा है कि आसपास थोड़ा भटको ना तो बहुत सारे सामान मिल जाता है, कुछ भी। तो हम लोग पहाड़ी में जाते हैं, कोई मतलब ऐसे वाइल्ड वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो सब कलेक्ट करते हैं, वो बना के ना वो थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा मस्त बना के फ़ोटो वोटो करके सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो लोग पूछते हैं, खाते। तो उसी दौरान मतलब ऐसा हुआ कि कभी कभी मतलब ऐसे चिकन वगैरह भी मतलब हम लोग का ट्रेडिशनल वे पे, पोक वगैरह कुछ भी मतलब हम बना के डाल देते ट्रेडिशनल वे पे। तो अभी फ़ोटो तो आंखों को भाता है ना पहले, तो लोग हमको बोलने लगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, वो लोग बोलने लगे कि व्हाई डोंट यू ट्राई क्लाउड किचन। हमें बोला अरे हाँ, हम तो ये सोचा भी नहीं। तो उससे पहले लाइक हम बोल रहे कि क्लाउड किचन हाँ ठीक ही है, लेकिन वो उतना गट्स नहीं था। वो गट्स आया हमको कहाँ से, टाटा स्टील फाउंडेशन से। सो 2019 में जब हम सिर्फ आप जैसे पहले बोले छोटा मोटा मतलब एग्जीबिशंस वगैरह करते थे, तब मेरा 2019 में मेरे को टाटा स्टील के साथ हम जुड़े कुजीन में। तो वहाँ पे आके जब हमने, तब किसी को पता भी नहीं था कि राभा कुजीन कैसा है, तो हमने रिप्रेजेंट किया गांव में। वो बोलने लगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी मतलब लोगों को लगा अरे हमारे गांव के लड़के ऐसे जाके वो कर रहा है, तो ठीक है सब, और सोशल मीडिया में देख रहा है अभी, कहीं ना कहीं वो हमको वो दिया कि अरे वो वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करके आया है तो अच्छा ही होगा। तो उसी दौरान हमको ये मिला कि गट्स मिला कि लेट्स ट्राई। तो उसके बाद हमने लॉकडाउन में क्लाउड किचन खोला। तो ऐसे मतलब छोटा सा सेटअप था घर में ही ऐसे नॉर्मल, तो वो चलाते चलाते वो हो गया क्लाउड किचन भी। अभी स्कूल भी खोल गया, तो अभी हम खुद तो नहीं कर सकते इतना, लेकिन घर वालों से करवाते तो वही था सिलसिला मेरा कुजीन का। तो अभी ऐसा है कि लाइक एज ए टीचर आई कैन गिव सो मच टाइम, बट मैं करती हूँ कि हम अकेले क्यों चले, मेरे साथ और भी लोग जुड़ना है। या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो या फिर कुछ पावर्स वगैरह रहना है किसी को हेल्प करने के लिए। लाइक अगर मेरे काम से कोई इंस्पायर हो गई या फिर मेरे आइडिया से 2-3 औरतें अगर उसको आगे लेके जाके 2 पैसा कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। कि वो लोग मेरे तारीफ करें या ना करें वो डजंट मैटर, मेरे को उसमें खुशी नहीं है कि लोग अरे उसने बोला था इसलिए हम किया, ये आगे वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो जो मन में जो सुकून मिलता है ना कि हमने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से 3-4 घर और चल रहा है, वो लोग अपने पैरों पे खड़ा है, तो वो सुकून बहुत मतलब अलग ही लेवल का है। सो हम खाने के साथ साथ कपड़े का भी वो काम करते हैं। लाइक तो कपड़ा भी वही सेम था, कपड़ा का भी लाइक ट्रेडिशनल क्लॉथ्स एंड ऑल लोग बनाते नहीं थे, पहनते नहीं थे बाजार से खरीद के। तो हमने जब पहन के मतलब थोड़ा इधर उधर घूमा, लोगों को पसंद आया, देन आई जस्ट गिव टू वीवर्स नो। तो थोड़ा औरतों को बोला कि ऐसा ऐसा डिज़ाइन से आप लोग ये बनाओ,
तो बना के बेचो। अभी आप लोग मतलब एंटायर आसाम एंड मेघालय में जो बॉर्डर एरियाज है उसमें आपको ट्रेडिशनल राभा क्लॉथ्स जो हैंडमेड है वो अवेलेबल है अभी मार्केट में। सो उसके साथ साथ अभी बहुत सारे औरतें जुड़े हैं, सब अपना अपना घर चला रहे हैं वैसे। तो खुशी होती है ये देख के, कोई कुछ बोलेगा ना बोले, जो खुशी मिलती है ना वो। थैंक यू सो मच दीपांविता, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और खाना बनाने का जो एक कल्चर है वो गांव में घर पे बहुत ये एक्सेप्टेंस है कि महिला जो है वो घर का खाना बनाएगी। हमारी भी मदर जो है हमारे घर पे भी अगर आप देखें तो हमारी जो माँ है वो खाना बनाती है। हम लोग एज अ वर्किंग वीमेन भी है बट ऑफिस से जाके घर पे खाना बनाते हैं। तो वो एक एक्सेप्टेंस है जनरल सोसाइटी का, फैमिली का भी इनफैक्ट, कि महिला है वो खाना बनाएगी। बट वही खाना जब एक एंटरप्राइज का रूप लेता है, एक वेंचर के रूप में आता है, तो वो बन जाता है पुरुषों का जोन। अधिकतर रेस्टोरेंट और होटल्स में अगर आप शेफ देखें, मे बी आपके नॉर्थ ईस्ट में भी वही सेम हो, अधिकतर जगह देखेंगे महिलाएं बहुत कम रिप्रेजेंट करती है। हर जगह वहाँ पे आपको मेल मेंबर ही दिखेंगे, मेल शेफ ही दिखेंगे। इनफैक्ट जो मास्टर शेफ भी आता है सीरीज, उसमें भी देखेंगे तो मैक्सिमम मेल ही दिखते हैं। तो जब तक वो घर की बात रहते हैं एक जेंडर पर्सपेक्टिव में, वो महिला का काम है। जैसे वो बिजनेस या पैसे का रूप ले, वो पुरुष में उसका वहाँ पे एंट्री हो जाता है। तो वैसे इन्वायरमेंट में आपने जो अपने कुजीन को इतना आगे आप लेकर के गए हैं, तो रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप अपने ट्रेडिशन और कल्चर पे काम कर रही है, कुजीन पे या फिर वीविंग पे, आगे और भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे मिलेंगी, देखने को जानने को मिलेगा। सो थैंक यू दीपान्विता। एक बात बोले? हाँ बिल्कुल। तो ये है कि जैसे आपने बोला कि जैसे प्रोफेशनल की बात आती है तो हम देखते हैं कि मर्द लोग होते हैं, लड़की मतलब औरतें होती ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो इसमें लाइक हम पहले जब गांव में थे तब हमको वो रियलाइजेशन भी नहीं था, क्योंकि गांव में मैं ऐसे मतलब आई फील लकी टू बोर्न इन सच ए विलेज जहाँ पे मतलब औरत और पुरुष के बीच में उतना भेदभाव नहीं होता है। सीरियसली है, मतलब मेघालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरतें और मतलब पुरुष सेम मतलब वो होता है, इज्जत मिलता है। तो वहाँ पे सेम वो किचन में साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं कर, कोई लोग बोलते हैं कि लाइक औरतें हैं वो लोग ये भारी भरकम सामान मतलब उठा नहीं सकते, बल्क में नहीं बना सकते। लेकिन हम जो बड़े हुए हैं वहाँ पे हम देखें कि हमारे मामी चाची वो लोग ही बनाते थे, तो वो तो बल्क में पूरा शादी का पूरा फेज वो लोग बनाते थे। तो जब मैं बाहर निकली तब देखे सीरियसली इज लाइक बाहर में ऐसा है कि बाहर जैसे भी हम लोग आते हैं कि प्रोफेशनलिज्म में, उसमें सिर्फ पुरुषों को बोलते हैं कि वो लोग कर सकते हैं, औरतें नहीं। तो ऐसी बात भी नहीं है बट इट्स टाइम टू चेंज। यस डेफिनेटली, थैंक यू। सो थैंक यू। एंड समय जो है हमारा सेशन का वो नियरली अब ओवर होने वाला है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के लिए हमारे ऑडियंस से। सो एक क्वेश्चन जो है वो है कि ऐसा क्या सपोर्ट या रिसोर्सेज आप लोगों को मिला अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए? कुछ ऐसा सपोर्ट या बाहर से कुछ ऐसा रिसोर्सेज आपको जो आप लोगों ने अपने इंटरप्राइज में यूज़ किया? कोई भी आंसर कर सकते हैं तीनों में से। ओके, तो फॉर मी व्हाइल आई स्टार्ट क्लाउड किचन, तो उस दौरान ऐसे कोई नहीं था, बस सपोर्ट मतलब मेरा सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही था, मॉरल सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फर्स्ट वाज लाइक थोड़ा सा मतलब लाइक 2-3 प्लेट ऐसे वैसे स्टार्ट हुआ। सो वही अभी थोड़ा जितना भी करती हूँ वही है। लाइक ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से सपोर्ट मिला है या फिर ले लिया है। शायद बोलने से किसी के साथ डिस्कस करने से शायद मिल जाता, नो डाउट, बट नहीं ऐसा कुछ लिया नहीं। वैसे भी हमको मैं ये मानती हूँ कि लाइक कुछ करना है तो सबसे पहले अपने दम पे स्टार्ट करो, पहले पहचान बनाओ, बाद में लोग आपको अपने आप ढूंढने आएंगे। सो दीपांत्री और मालती, आपका तो एक कम्युनिटी एंटरप्राइज है, कलेक्टिव के रूप में आप लोग चलाते हैं, तो आपके लिए कुछ सपोर्ट कैसा है, आपका ग्रुप का सपोर्ट कैसे वो मिला? इसमें जो हम लोग को सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग जो जैसे इंटरप्राइजेज का जो ट्रेनिंग हैंडीक्राफ्ट का है, जैसे सोप मेकिंग का, सोप जो बनाते हैं, या तो जो टेराकोटा का काम होता है, वुडन क्राफ्ट का काम होता है,
बम्बू का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है। तो हम लोग को ये टाटा स्टील के द्वारा ही ट्रेनिंग पहले मिला था। ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर जो भी हम लोग जो पूंजी हम लोग को लगता है, तो पूंजी हम लोग खुद ही मतलब जितना मेंबर्स हम लोग उसमें रहते हैं, सब मेंबर्स मिला के हम लोग स्टार्टिंग किए। और जैसे जैसे स्टार्टिंग हुआ, शुरू में तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत ही हुआ कि मार्केट नहीं है, कहाँ बेचेंगे कहाँ नहीं, तो नर्वसेस होने लगे हम लोग। फिर बीच बीच में जब बैठक करते हैं तो फिर बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि नहीं, हम लोग को हौसला तो नहीं हारना है, और तुरंत तो कुछ भी चीज़ में नहीं दिखता है, थोड़ा सा पहले मेहनत करना ही पड़ता है, मार्केट ढूंढना। तो जैसे जैसे हम लोग में थोड़ा सा हौसला आने लगा, और पूंजी में भी हम लोग बोले नहीं, खुद ही पहले पूंजी लगाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग का मार्केट फिर जैसे संगबाद में, फिर एक जोहार हाट टाटा स्टील के द्वारा वहाँ पे जमशेदपुर में हम लोग का है, फिर बाहर में भी जैसे बॉम्बे में भी काला घोड़ा जो मार्केट, मतलब जगह जगह का हम लोग को हाट मिलता है। तो उसी से हम लोग को थोड़ा सा हम लोग प्रोत्साहित हुए, और आगे बढ़ने का एक और अलग मतलब अलग जुनून हम लोग में आया कि भाई हम लोग को छोड़ना नहीं है, और इंटरप्राइज को बहुत आगे तक हम लोग लेके जाएंगे, और ब्रांड देने का हम लोग काम सोचे हैं, और कोशिश भी है, अब अभी भी जारी है। हर जगह पे हम लोग मार्केट में जाते हैं, अपना सामान को लेके जाते हैं, और उससे हम लोग को पैसा मिल जाता है। और थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि ये जो जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग का, हम लोग को गांव में ही सारा कुछ मिल जाता है, जो सामान मटेरियल जो है। जैसे कि हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग को ये सारा चीज़ वो मार्केट में जब जाएगा, जब ये टाउन में जाएगा, तो ये इतना अच्छा और लोग इनको पसंद करने लगेंगे। जैसे बम्बू हम लोगों के गांव में ही मिल जाता है, तो इस चीज़ से अगर एक छोटा सा होम डेकोरेशन हम लोग बना देते हैं, तो ये मार्केट में उतर के इतना महंगा प्राइस में हो जाता है, ये हम लोग को पता नहीं था, और ये गांव में ही मिल जाता है। और जैसे कि पेंटिंग का, तो गांव की मिट्टी जो है वो एक कलरफुल में है, जैसे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, वो अलग अलग कलर की है, तो ये गांव में ही अवेलेबल हो जाती है। और हम लोग पेंटिंग को भी शुरू किया कि ये हम लोग के जो ट्रेडिशनल, जो हम लोग के महिला लोग जो दीवार पेंटिंग करती थी पहले, वो चीज़ को हम लोगों ने हर चीज़ में उतारा। तो ये देखा कि ये इतना जो मार्केट में जाकर इसका प्राइस हाई लेवल तक है, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ये मार्केट में इस तरह से आएगा। जैसे और टेराकोटा मिट्टी से हम लोग होम डेकोरेशन का अलग अलग बहुत सारा ऐसे आइटम है कि हम लोग वो खेलने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों के देते हैं, अपने यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ वो मार्केट में उतर के इतना अच्छा प्राइस भी मिलेगा, तो हम लोग सोचे नहीं थे कि उसी चीज़ को हम लोगों ने सबको महिलाओं को कन्विंस करके जोड़े, और जो हम लोग को उसमें मटेरियल गांव में ही अवेलेबल हो जाता है। जैसे लकड़ी, वुडक्राफ्ट में लकड़ी हम लोग को गांव में ही जंगल में मिल जाता है, घर में सबके आंगन तो इतना बड़ा बड़ा होता है कि उसी में इतना सारा पेड़ मिल जाता है, तो उसी लकड़ी से हम लोग वुडक्राफ्ट का होम डेकोरेशन सामान बना लेते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग को गांव से भी अवेलेबल हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये हम लोग के जो गांव के जो सब रीति रिवाज है वो भी हम लोग के छूटे नहीं। पेंटिंग जो है हम लोग गांव के धीरे धीरे जो छूट रही थी वो भी नहीं छूटे, और फिर हम लोग को जो नेचुरल चीज़ है वो भी नहीं छूटे। और जैसे कि अभी प्लास्टिक का सब कुछ ये हो रहा है, वो भी नहीं हो, हम लोग का जो नेचुरल है वो ख़राब नहीं हो। प्लास्टिक के अभी तो बहुत जगह प्लास्टिक यूज़ करता है सब अलग अलग चीज़ें, तो ये हम लोगों ने सोचा कि ये हम लोग के प्राकृतिक को भी नुकसान नहीं पहुँचाए। और ये होम डेकोरेटर के लिए जैसे कि मार्केट में उतरने के बाद ये इतना हाई लेवल में बिक रहा है, हम लोग सोचे नहीं थे। तो ये अब हम लोग जब हम लोग जोहार हाट गए और आर्ट फेस्टिवल काला घोड़ा गए, ये देख गए, हर जगह गए, टाटा स्टील द्वारा हमको भी ले गए, हम लोगों के सामान देखे, तो ये देखे कि ये इतना अच्छा मतलब सेल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगा।
और यही देखते हुए कि महिला लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर जो पहले जो जेंट्स लोग जो हम लोग को ताना मारते थे कि ये लोग क्या करती है, दिन भर कटर कटर करते रहती है अपना काम छोड़ करके, तो उन लोग कुछ बाद में जानने लगे कि ये लोग इतना अच्छा अच्छा सामान बनाती है होम डेकोरेशन का। फिर धीरे धीरे उन लोग भी ऑर्डर देने लगे, कोई अपने गर्लफ्रेंड के लिए, कोई स्कूल में, कोई टीचर के लिए। उन लोग ऑर्डर देने लगे, हम लोग बना कर देते थे, उन लोग को बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छा लगता कि हम लोग ऐसे कुछ कर पाए। शायद मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि जो आया था यहाँ से कि एक इंटरप्राइज को स्टार्ट करके सबसे खुशी क्या लगती है आपको, तो वो आपने शायद जवाब दे ही दिया उस चीज़ का, जिस हिसाब से अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने आप को जो साबित आप गांव में कर रहे हैं, और जब सब सारा सोसाइटी बोलता है कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद ये जो खुशी और ये जो सेटिस्फैक्शन है एक इंटरप्राइज से सबसे बड़ी चीज़ सीख जो है यही निकलती है। पैसा तो है ही, इट्स नॉट, हाँ आई नो टाइम्स अप, थैंक यू। सो जस्ट आई टेक 30 सेकेंड्स मोर एंड जिस हिसाब से आप लोगों ने अपने जर्नी को शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। एंड यही ज़रूरत है कि पैसा तो है, दैट इज वो दुनिया की सच्चाई है। आप इंटरप्राइज करेंगे, पैसा आपका चाहिए जीवन जीने के लिए, दैट वो एक क्रूड रियलिटी जो बोलते हैं हम, वो है। बट कुछ आपके जैसे शायद 5 या 10% लोग हैं जिनके लिए वो पैसे से बड़ा कुछ उनका और सपना रहता है, एक विजन एक लार्जर सोसाइटी के लिए रहता है। और दीपांतरी, मालती जैसे आप लोगों ने अभी लाइवलीहुड में आप आए हैं, पहले आपने सोशल वर्क से अपना शुरू किया है, एंड दीपान्विता आपने अपने इंटरप्राइज को ही अपने ट्रेडिशन और अपने डेवलपमेंट काम का एक हिस्सा बना लिया। खुशी की बात बताए, खुशी बांटिए खुश। खुशी की बात ये है कि मैंने जैसे बताया वो ट्रेडिशनल कुजिन से सीधा आके बटर चिकन पे अटका था, अभी वो बटर चिकन से सीधा ट्रेडिशनल कुजिन आ गया। अभी हमारे गांव में जितने भी फेस शादी वगैरह होता है सब में ट्रेडिशनल कुजिन्स बनता है। ऊपर से आसपास के लोग जितना भी टाउन एरिया से, उनमें जो वहाँ के लोग भी कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारे वहाँ से मतलब हमको कांटेक्ट करते हैं कि अब लोग भेजो बनाने के लिए। तो हमारे वहाँ के जो हमारे मामी चाची वगैरह है वो लोग अभी मतलब पूरा एज ए कैटरर वो लोग जाके ट्रेडिशनल कुजिन्स बनाते हैं। शायद यही बदलाव है जो आप लोगों के प्रयास से हम लोग एक इक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो शायद सिर्फ इनकम को, सिर्फ पैसों को उस दायरे में नहीं रख करके हम उसके पीछे का जो एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है उसको देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच अपने जर्नी और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कहानियाँ शेयर की यहाँ आके। स्मिता, thank you so much for bringing these real stories to चर्चा. That's really really important to all of us. आपको बहुत धन्यवाद। एक छोटा टोकन है हमारे तरफ से थैंक यू के देने से। Would request the volunteers to please give that. And thank you to the audience. Request you all to please use the QR codes at the back of the agenda to share your feedback. And if you have any further questions, feel free to have a discussion with these ladies outside in the networking areas. And we will take a break for 50 minutes for lunch, and we'll have the last session for the day after that.